Hey everyone. So when we get started with our placement journey, one of the things that we keep in mind is that okay, we have to go in FANG or recently changed to MANG, right? So what it stands for, basically Google, Microsoft, Amazon. So one of the companies that I mentioned about, Amazon, that's what we are going to talk about today. And we are having Muskan with us. So she recently cracked Amazon. So having a lot of questions to ask about her interview experience, her placement strategy, the whole journey we'll be talking about. So a lot of questions to ask. So without further ado, let's get started. So hi Muskan, how are you? Hi Chirag, I'm fine, and you? I'm great as well. Actually, very excited for this podcast. And so let's start with the introduction first. Yeah. My name is Muskan Mishra. I am pursuing VTech in Computer Science from NIT Jamshedpur, and I have good understanding of C++ and data structure and algorithm. And I am also interested in web development, and I have been cracked Amazon. That's really amazing, right? And so one thing that I want to ask about is कि as you said you are from NIT, right? So definitely you have given JEE mains and advance. तो 10th से हमारी जर्नी शुरू हो जाती है कि हम पहले JEE मेंस और एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर 4 years ऑफ बीटेक में हम प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं. सो अराउंड 6 to 8 years अगर मैं मानूं ऑन एन एवरेज, तो वो पूरी जर्नी के बाद एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा आता है कि ओके वी आर प्लेस्ड, right, after so many ups and downs, so many sacrifices. So how was that feeling, and especially in a company like Amazon? Yeah, it was great feeling actually. जब वो लिस्ट आया था जिसमें ऑफर मिला था, उसमें पहली तो मुझे मेरा नाम ही नहीं दिख रहा था. जब कॉन्ग्रेचुलेशन आने स्टार्ट हुए तब मुझे पता चला ओके आई क्रैक्ड इट. या मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उन्हें बताया. दे वेर इमोशनल. So yeah, it was great feeling. Exactly. That's what I wanted to ask, because it's a dream company of many of the students and definitely yours as well. And when Amazon, the tag is enough, right? So let's get back to the main discussion. So it all happened because you started coding, right? You had your own coding journey. So how was your coding journey basically? How it all started? Actually, I completed my 12th from Uttar Pradesh State Board. Okay, I have no prior knowledge of programming. Okay, when I came to NIT, seniors guided me and told me to start to learn programming. So मैंने अपने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था. बट मुझे टाइम लगा क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था. मतलब मुझे कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं उसका भी नॉलेज नहीं था, पर धीरे धीरे गाइडेंस से स्टार्ट किया था. तो मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था. एग्जैक्टली. मैंने भी मतलब मेरे साथ भी यही था, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान. सो RBSC स्टेट बोर्ड से था. सो वहाँ से मतलब ऐसा नो कोडिंग और such thing. So when I started with the college, then only I started with it, right? So in coding also, like some people do DSA, some people do competitive programming. It's kind of a DSA versus competitive. So what approach did you take to like crack Amazon? मैंने फोकस DSA पे किया था. मैं ज़्यादा DSA क्वेश्चन सॉल्व करती थी, पर मैं स्टार्टिंग डेज में मैं मतलब CP पे भी करना स्टार्ट की थी. बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था CP पे. मतलब मुझे वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं वो करने लगी थी और CP उतना नहीं कर पाई थी. बट फिर मैंने DSA पे फोकस किया. फिर DSA के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे. फिर वही कंटिन्यू किया था DSA करना. एग्जैक्टली. पता है मेरे साथ भी शायद सेम ही चीज़ हुई थी, बिकॉज आई स्टार्टेड विद कॉम्पिटिटिव, बट आई थिंक ओके इट्स नॉट दैट, आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट, सो आई स्टार्टेड विद DSA. एंड आई थिंक DSA इज काइंड ऑफ इनफ for interviews, but for coding round, no, you need some competitive practice. जब भी कोई जूनियर या कोई कुछ पूछता है तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि उन्हें CP करना चाहिए, बिकॉज उसका बेनिफिट बहुत होता है. मतलब प्लस पॉइंट होता है उसका. Exactly. Means a perfect balance should be required. Exactly. So coming back to your coding journey, so you started in the first semester or like first year itself. So after that, how it all happened, how it all went, because apart from coding, you might be into development as well, as you said in your introduction. So how it all happened throughout your day when you weren't placed in Amazon? हाँ, मतलब स्टार्टिंग डेज में तो बहुत जोश था कि सब कुछ सीखना है. इन्हें लैंग्वेजेस आता है, दूसरे लोग 4 लैंग्वेजेस जानते हैं, मुझे अभी तक एक भी लैंग्वेजेस नहीं आती है.
तो मतलब पहले बहुत जोश था और स्टार्ट सीपी से ही किया था, मतलब लैंग्वेज सीखने के बाद, तो वो बहुत सही चल रहा था। बट फिर कोविड आया, हम लोग सब कुछ घर पे चले गए, वो गाइडेंस कम हो गया, वो पाथ छूट गया, मतलब सीपी करना कम हो गया। वेब डेवलपमेंट पसंद था, कभी कभी सीनियर्स गाइड कर देते थे कि करना है, और वो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो वेब डेवलपमेंट करने लगी थी। फिर कोडिंग बिल्कुल छूट चुकी थी, और जो किया हुआ था वो इंसान भूलने लगता है धीरे धीरे। तो बहुत फिर धीरे धीरे जब रियलाइज़ होने लगा, कंपनीज का पता चलने लगा, आने लगी, तो फिर मैंने जब फिर डीएसए कंटिन्यू किया, तो फिर मैं फिर मैंने जारी रखा उसको करना। फिर मैंने उसे कभी भी रोका नहीं, फिर वो गैप नहीं आने दिया। एग्जैक्टली। सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड विद प्लेसफिट? हाँ, एक्चुअली इंटर्नशिप के टाइम क्या था कि इंटर्न लग नहीं रही थी कहीं, तो आप होपलेस हो जाते हो, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या गलती हो रही है, मतलब नहीं हो पाएगा। और कोविड का टाइम था, हम लोग अपने घर पे थे, तो उतना गाइडेंस भी नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत वैसा फील हो रहा था। फिर प्लेसफिट आया, और प्लेसफिट का मतलब जो प्रोग्राम था वो काफ़ी प्रॉमिसिंग था, मतलब काफ़ी अच्छे मेंटर्स थे, इंस्ट्रक्टर थे, जो काफ़ी बिग कंपनीज में प्लेस्ड थे सब, और आप प्लेस्ड होगे तभी आपको मतलब अमाउंट पे करना है टाइप। और काफ़ी उनका प्रोग्राम काफ़ी जैसे कि रेगुलर था, मतलब काफ़ी मतलब हेल्प आउट करते थे, एकदम मैनेज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे। हाँ, मतलब हाँ, स्ट्रक्चर वे में था। और वो जो आपको सोर्सेज वो प्रोवाइड करते थे, वो आप काफ़ी हेल्पफुल सोर्सेज थे, और वो सोर्सेज मतलब आपको कहीं नहीं मिल सकते, मतलब। हाँ, बिकॉज वन थिंग यू सेड कि जब कोविड स्टार्ट होते एक सीनियर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था हमारा, बहुत गैप क्रिएट हो गया था, राइट? तो उस गैप को, हाँ, आपको वो पाथ भी नहीं पता चल रहा था कि आपको मतलब क्या ट्राई करना है। आप कभी ये ट्राई कर रहे हो, कभी आप ये ट्राई कर रहे हो, कभी आप लीड कोड पे क्वेश्चंस कर रहे हो, कभी आप जीएफजी पे क्वेश्चंस कर रहे हो, कभी आप इसका सीट कर रहे हो, कभी आप उसका सीट कर रहे हो, और आप अधूरे, आपका नॉलेज मतलब अधूरा रह जा रहा है, आप कंप्लीट कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ड्यू टू इंटरनेट सब कहते हैं कि ड्यू टू इंटरनेट सब कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, पर सारे रिसोर्स स्कैटर्ड है, तो हमें मतलब एक गुरु तो चाहिए। अभी टीचर्स डे गया था, जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण थे, तो मतलब किसी न किसी को गाइडेंस वाला चाहिए होता है। सो दैट्स हाउ प्लेसफिट हेल्प यू। तो प्लेसफिट उसमें हेल्प करता था। और प्लेसफिट लाइक मतलब वो आपके सामने सब कुछ लाके रख देते थे कि आपको ये करना है, और आप अगर कर लोगे ये, तो आपको प्लेस्ड हो जाओगे बहुत अच्छी कंपनी में। तो जिसने वो जितने अच्छे से किया है, जिसने जितने अच्छे से फोकस किया है, वो उतनी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हो रहे हैं। Exactly. That's really great. तो how was like the instructors there and like, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे पर्सनली फील होती है कोडिंग जर्नी में कि हमें बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं। कई बार मतलब कोडिंग क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कई बार समझ आ जाते हैं तो कोड नहीं लिख पाते, कई बार हमें लगता है कि हम कोड लिख देंगे पर लॉजिक नहीं बनता है। सो हाउ वाज द बेसिकली डाउट सॉल्विंग, आई एम आस्किंग कि इंस्ट्रक्टर्स कैसे थे और डाउट सॉल्विंग कैसी होती है प्लेसफिट पे? एक्चुअली क्षितिज सर गूगल में प्लेस थे, वो हमें 4 मंथ के लिए मतलब हमारे इंस्ट्रक्टर रहे वो। और क्षितिज सर मतलब बहुत नॉलेजेबल थे, और वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते थे बच्चों से, और सारे डाउट आई थिंक वो सॉल्व कर देते थे। और कभी भी कोई भी डाउट आता, या कोई भी सिली डाउट है, मतलब बेसिक चीज़ है जो हमें नॉलेज होनी चाहिए बट नहीं है, फिर भी क्षितिज सर वो हमें बताते थे, हमारे डाउट सॉल्व करते थे। और वी कैन कांटेक्ट विद हिम एनी टाइम, मतलब हम कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब रात के भी बजे उनमें मैसेज करते तो भी वो जब भी फ्री रहते तो वो डाउट सॉल्व कर देते थे। और या दैट्स रियली ग्रेट, राइट? तो जैसे कि एक चीज़ आपने मेंशन की कि प्लेसफिट ने आपकी डेफिनेटली हेल्प करी, क्योंकि इंटर्नशिप्स के टाइप पे आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, बट यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट, राइट? सो प्लेसफिट हेल्प यू आउट इन दैट।
सो बेसिकली उन्होंने आपको कुछ चीज़ें बताई होगी, जैसे मॉक इंटरव्यूज हुए होंगे या स्ट्रेटजीज होगी. सो व्हाट वाज योर प्लेसमेंट स्ट्रेटजी? बिकॉज आपने जहाँ तक कि मुझे पता है कि व्हेन प्लेसमेंट स्टार्टेड, जो पहला इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिली वो आपने क्रैक कर दी एंड यू आर प्लेस्ड इन Amazon, राइट? तो व्हाट वाज योर प्लेसमेंट स्ट्रेटजी? क्या क्या चेंजेस आपने अपनी स्ट्रेटजी में किए कि दैट रियली वर्कड आउट फॉर यू? हाँ, एक्चुअली जब इंटर्नशिप के टाइम मेरे इंटरव्यूज थे तो ऑफ कोर्स वो क्रैक नहीं हुए. एक रीज़न ये भी था कि मैं नर्वस थी और उस टाइम हम लोग वो क्वेश्चन इजी होते हुए भी थिंक नहीं कर पाते या अपना अप्रोच उन्हें नहीं बता पाते हैं इंटरव्यूअर को, और वो हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है. तो प्लेसमेंट में मतलब मॉक इंटरव्यूज़ थे वो, और हमारे मतलब मेरे मेंटर्स हैं अविनाश सर, शुभांग सर और शुभम सर थे. तो वो लोग मैंने काफ़ी मॉक्स मतलब दिए हैं उन्हें. तो वो जो फीडबैक देते थे कि यू हैव टू इम्प्रूव दिस और डैट, तो वो काफ़ी आपका हेल्प करता है. मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत इम्प्रूव किया है वो, और मेरा वो नर्वस वाला जो फेयर होता है वो ख़त्म हो गया था उसके वजह से, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी इंटरव्यूज़ में. ओह, दैट्स रियली गुड. बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कई बार लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बट दैट सॉफ्ट स्किल्स इज रियली रिक्वायर्ड. हाँ, मतलब आपको अपना अप्रोच इंटरव्यूअर को कैसे समझाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. मतलब कि आप अप्रोच बता पाओ, अपना लॉजिक बता पाओ उन्हें. हाँ, कि कई बार आने के बावजूद अगर आप चीज़ें नहीं समझा पाते तो दैट हर्ट्स द मोस्ट. या सेम यही होता था कि मतलब इजी क्वेश्चंस होते थे और अपना अप्रोच हम लोग बता नहीं पाते थे, और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, और तब तक आप नर्वस हो जाते थे और आगे सब गलत हो जाता था. Exactly. So one of the thing that placement help you out with है कि communication skills आपकी, वो माहौल आपको पहले से बता दे रहे कि ऐसा होता है, so you have to deal according to that. और मतलब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर होता है ना, लाइक सभी का एक्सपीरियंस हमसे शेयर होता था कि उन्होंने ये फेस किया, सर ने ये फेस किया, तो काफ़ी हेल्प होता था उस चीज़ से. हाँ, because your mentors are placed on the companies that you want to be a part of. They cracked many companies. Exactly. Yes. तो हम यहाँ तक बात कर चुके हैं कि आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही, कोडिंग जर्नी कैसे रही, प्लेसमेंट ने आपको कैसे हेल्प किया, इंटरव्यूज के लिए आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रही. पर उसके पहले जो चीज़ आती होती है, कोडिंग राउंड हमें निकालना रहता है, राइट? और कोडिंग राउंड से पहले आता है कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होनी चाहिए. तो रिज्यूमे पे आपने मतलब क्या क्या काम किया था, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूड कर रखे थे, एंड रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का बेसिकली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, तो एक्चुअली मैं मतलब उतनी सीपी नहीं करती थी, तो मेरे वैसे अचीवमेंट्स काफ़ी नहीं थे. और मैंने कहीं इंटर्नशिप नहीं किया था, मतलब कहीं क्रैक नहीं हुआ था मेरा इंटर्नशिप, तो मेरा रिज्यूमे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. बट प्लेसमेंट ने हेल्प किया था. मतलब काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स प्लेसमेंट ने कराए थे, और उसको ऐड करना, और वो इंडिविजुअली सबके रिज्यूमे को रिव्यू भी करते थे और बताते थे कि क्या कमी है, क्या ऐड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो उससे रिज्यूमे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. That's really great. Right. तो प्रोजेक्ट्स ने आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिज्यूमे, मतलब इंटरव्यूज की भी अगर मैं बात करूँ? हाँ, तो जो मतलब जैसे प्लेसमेंट ने जो प्रोजेक्ट कराया था हमें, वो मैंने मेरे इंटरव्यूज़ हुए, मतलब उनमें मैंने वही प्रोजेक्ट्स बोला है, और मुझे काफ़ी मतलब पॉजिटिव फीडबैक्स आता था इंटरव्यूअर्स की तरफ से कि ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, और उस पर काफ़ी मतलब बिहेवियरल क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ते जाते थे. वो पूछते जाते थे कि ओके कैसे किया, क्या किया. तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मेरे पॉजिटिव मार्क्स ऐड करता है. एग्जैक्टली. मतलब अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहता है जिसमें इंटरव्यू भी इंटरेस्ट लेता है, लाइक नॉट अ पर्टिकुलर इंटरव्यू वाली फीलिंग नहीं आती है उसमें, राइट? तो वन थिंग दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इज कि हमने रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग देख लिया, ऑनलाइन कोडिंग राउंड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव इज रिक्वायर्ड काइंड ऑफ, और राइट. सो उसके बाद अगर हम इंटरव्यूज पे आए, तो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओवरऑल, कि मतलब कितने राउंड्स हुए थे, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, एंड एवरीथिंग अबाउट इट, बिकॉज ये मेन पार्ट है. इसमें सारे जो भी लोग Amazon में जाना चाह रहे हैं वो सुन रहे होंगे इसको अच्छे से.
हाँ, तो अमेज़ॉन का जो कोडिंग राउंड था उसमें उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि इजी क्वेश्चंस थे, एरे पे बेस्ड थे, और प्रीफिक्स अफिक्स वाले क्वेश्चंस थे। 70 मिनट्स का ड्यूरेशन था, उसमें आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने थे और वो इजी लेवल क्वेश्चंस थे। उसके बाद अमेज़ॉन का एक 4 आवर्स ड्यूरेशन का एक असेसमेंट आता है, जिसमें वो मतलब काफ़ी बिहेवियरल क्वेश्चंस की, लाइक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कैसे काम करेंगे, वो काफ़ी चॉइस टाइप क्वेश्चंस थे। तो वो था एक 4 आवर का, जो कि जस्ट आपका कोडिंग राउंड के बाद आता है। और उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट करके एक था, तो वो थी 50 to 30 मिनट्स का था। तो ये काफ़ी ड्यूरेशन का था पूरा प्रोसेस। और ये पहला राउंड, ये कोडिंग राउंड का था। उसमें शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो 3 इंटरव्यू राउंड थे, फर्स्ट राउंड में 1 कोडिंग क्वेश्चंस था और दूसरे बिहेवियरल क्वेश्चंस थे। क्योंकि अमेज़ॉन का लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो उस बेसिस पे वो काफ़ी क्वेश्चंस उस पर पूछते हैं। तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने पूछा था मुझसे 3 सम क्लोजेस्ट टू टारगेट, एक क्वेश्चन पूछा था, और डीएसए का, और देन उन्होंने एलपीएस पे क्वेश्चंस पूछे थे 2-3, और प्रोजेक्ट पे पूछा था। प्रोजेक्ट पे उतना वो डेप्थ में नहीं गए थे, वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, लाइक कि व्हाई यू चूज दिस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। तो मतलब डेप्थ में नहीं गए थे। और इन सेकेंड राउंड ऑल्सो दे आस्क्ड 2 डीएसए क्वेश्चंस, एंड देन बचे में प्रोजेक्ट्स और एलपीएस क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चंस। और सेम थर्ड राउंड में भी हुआ था, पर हर राउंड में एक इंटरव्यूअर था। थर्ड राउंड में 2 इंटरव्यूअर प्रेजेंट थे, और उन्होंने भी 2 डीएसए क्वेश्चंस और थोड़ा प्रोजेक्ट पे पूछा था, और फिर उसके बाद वही एलपीएस क्वेश्चंस पूछे थे, लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चन। सो एचआर राउंड हुआ था एंड में, या फिर बिहेवियरल क्वेश्चंस आपसे राउंड में ही पूछे जा रहे थे, तो इट वाज नॉट देयर? एक्चुअली एचआर राउंड नहीं हुआ था, 3 राउंड ही हुए थे, और तीनों में डीएसए क्वेश्चंस और एलपीएस क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एलपीएस क्वेश्चंस थे लाइक व्हेन यू टुक कैलकुलेटेड रिस्क वगैरह, ऐसे करके थे। तो बिहेवियरल क्वेश्चंस ही हुए वो, तो इसलिए उन्होंने वैसा कुछ आस्क नहीं किया था। तो एचआर राउंड नहीं हुआ था एक्चुअली, 3 ही राउंड थे। अच्छा, तो मतलब ये वाला प्रोसेस थोड़ा वो एम्बिगियस नहीं है, कंसीडरिंग के नॉकआउट राउंड्स नहीं है, तो सभी लोग तीनों राउंड दे रहे हैं, तो सबको एंड तक उम्मीद रहती है। और एक्चुअली तीनों राउंड नॉकआउट राउंड नहीं थे, फॉर ऑल द 3 राउंड्स तीनों कंपलसरी थे, तीनों राउंड देने थे। ओके, और सेलेक्ट कितने की? दे सेलेक्टेड 100 पीपल्स। वो उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था फॉर इंटरव्यू, और उन्होंने 100 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी लिया था। Okay, but still out of 100 means you gave hope to 100 students, they cleared, they went to 3 rounds. In our college how it happens is कि हर राउंड में नॉकआउट होते जा रहे हैं, और जो एचआर में पहुंचा है that is 95% selected. पहले मतलब हमारे कॉलेज में पहले 11 लोग को सेलेक्ट किया था, देन उन्होंने फिर से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, तो एट द एंड 28। हाँ, इनका अलग स्ट्रेटजी रहता है। So one question that I really want to ask is कि आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो मतलब ऑनलाइन था या ऑफलाइन? Means it was virtually or in person? Yeah, actually ऑनलाइन ही था, ऑनलाइन था। Okay, so मतलब मीट में एंटर करने से पहले बहुत नर्वसनेस रहती है, so how you basically dealt with that? Actually उस दिन हम लोग को पता भी नहीं था कि उस दिन अमेज़ॉन का मतलब इंटरव्यू होने वाला है। जो शेड्यूल हुआ था हम लोग को टाइम, जैसे 9-10 शेड्यूल हुआ था, तो एचआर का बाद में मैसेज मतलब आया था कि आज ही होगा। तो हम लोग बहुत नर्वस थे, लाइक हमें जस्ट पता चला था कि आज ही होने वाला है हमारा इंटरव्यूज़। तो और मेरा तो लगातार हुआ था, मतलब 3 घंटे, तीनों राउंड वाले इंटरव्यूज़ 3-4 घंटे पूरे लगातार हुए थे।
उसमें बस ब्रेक उसमें पूरी 1-2 energy मिनट drain का हो मिला जाती है। था, या 1-2 मिनट का बस ब्रेक था उसमें, तो तीनों लगातार हुआ था। ओके, राइट। सो वी हैव डिस्कस लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे आपने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, कैसे आप थोड़ी मतलब डिफिकल्टीज होती है अप्स एंड डाउन्स कोडिंग जर्नी में वो देखी, Yeah. इंटर्नशिप्स के टाइम पे जो प्रॉब्लम आई, फिर आपने प्लेसमेंट ज्वाइन किया, नई स्ट्रेटेजीज बनाई, कुछ नई चीज़ें सीखी, एंड फाइनली जब आपका अमेजॉन में प्लेसमेंट हुआ वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ओवरऑल वी हैव लर्न अ लॉट, आई पर्सनली गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, राइट, एंड योर एक्सपीरियंस। So, any advice you want to give to a fresher or to a person who is in his or her respective journey, right? That how he or she should like start and like basically if you will recommend Placeway to them. एक्चुअली फर्स्ट चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि मतलब मैंने वेब डेवलपमेंट करना जब स्टार्ट किया था तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हो गई थी, और मैंने DSA और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, जो कि बहुत मतलब मेरे लिए बहुत गलत साबित हुआ था। मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था। तो मैं उन्हें यही बोलूँगी कि फर्स्ट उनको बैलेंस करना चाहिए वेब डेवलपमेंट और CP और DSA में, DSA और वेब डेवलपमेंट में उन्हें बैलेंस बना के रखना चाहिए। और दूसरा, उन्हें CP ज़्यादा नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी थोड़ा मतलब करते रहना चाहिए CP, उससे वो काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ होगा और काफ़ी अच्छे जगह वो और अच्छी जगह प्लेस्ड हो सकते हैं, तो वो करना चाहिए। और प्लेसमेंट मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप प्लेसमेंट लाइक सिर्फ वो स्टडी के लिए नहीं, मतलब लाइक गाइडेंस भी गाइडेंस प्रोवाइड करती है आपको वो मेंटर्स मिलते हैं। मतलब आप अपने फेलर्स को, अपने फीलिंग्स को, आप जब डीमोटिवेटेड फील होते हो तो आप वो चीज़ भी शेयर कर सकते हो, और आप एक टाइम पे मतलब डीमोटिवेटेड आप फील करने लगते हो जब आपका इंटर्नशिप क्रैक नहीं हो रहा होता है या आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना रहता है। तो प्लेसमेंट मतलब के मेंटर्स और वो हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमें हमेशा गाइड करने के लिए अवेलेबल रहते थे, हमें हर कुछ प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ कोई डाउट आता था वो हर सोर्सेज हर कुछ प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल रहते थे। और वो एक होता है ना कि बैकबोन टाइप होना, कि आप एक हमारे पास सपोर्ट रहता है कि हमें कुछ नहीं आता तो ही और शी इज देयर फॉर अस। और वो लोग अमेजिंग है, मतलब लाइक दे क्रैक बिग कंपनीज लाइक गूगल, एटलासियन, स्प्रिंकलर, अमेजॉन वगैरह। मतलब हमारे मेंटर्स और इंस्ट्रक्टर बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत अच्छे थे। एग्जैक्टली। सो आई होप कि आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो भी हमारी ऑडियंस है दे डेफिनेटली हैव लर्नड अ लॉट, स्पेशली आई हैव लर्नड अ लॉट, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम. So thank you for Muskan for such an amazing session, and I wish you all the luck for all your future endeavors. Thank you, Chirag. Here at Placeway, you get a dedicated team of mentors and instructors from top companies who will support you until you are placed at a company that you actually deserve. You will be taught with a battle tested curriculum, including everything that is required for an amazing placement, like coding, computer science subjects, projects, resume building, mock interviews, etc. And the best thing about Placeway is that they offer you a job guarantee without any upfront cost. This simply means that you can join Placeway and start the preparation for free with a guaranteed job. So check out the link in the description if you want to get placed in a top company. Thanks for watching.